Yes. Hello, friends. I welcome all of you. This is Professor Bhushan Sandwadkar from EduFest Academy. Today, we are going to discuss about current affairs for the examination RPSC, and the post is ATP. As you all know, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ATP की पोस्ट के बारे में हम लोग जो करंट अफेयर्स का आज का हमारा लेक्चर है ये लेने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस स्टफ. हम लोग स्टार्ट करेंगे. Just a second. Yes. So let's get started. We'll first talk about the history of Rajasthan, a short introduction for the history of Rajasthan. As we all know that because it is a Rajasthan Public Service Commission exam, all historical antecedents then a bit of an economy, bit of a geography of Rajasthan will come into play. हम लोग इतिहास की बात करेंगे राजस्थान की. First point is here in front of you. Evidence of human settlement as long as 1 lakh years ago along the river banks of river Banas and its tributaries Gambhiri, Viraj and Vagan. हम लोग देखते हैं कि एंशियंट इंडिया का एक बहुत ही बड़ा सेटलमेंट राजस्थान में हुआ करता था. As we all know that we are a part of the Harappan and Indus Valley civilization, as it is popularly known as the Harappan civilization. Major sites of the Indus Valley civilization were located in the northwestern part of the country, also in what is today called as Pakistan, a country of Pakistan and Afghanistan. So the ancient Indian history of Indus Valley civilization stretches from geographically from what is today's Afghanistan, from Pakistan up to India, and a healthy part of those settlements were found to be in Rajasthan. The state of Rajasthan, hence, was a state with great historical diversity, and it was also a homeland to the earliest human settlements or some of the earliest human settlements on the Indian subcontinent. तो इसलिए राजस्थान का इतिहास एक बहुत ही गौरवान्वित इतिहास रहा है, बहुत ही विविधता से नटा हुआ इतिहास रहा है, और इसीलिए हम लोग सबसे पहले राजस्थान की धरती पे ह्यूमन सेटलमेंट का इतिहास देखते हैं. वो 1 लाख साल पहले की लगभग बात हुआ करती थी. बनास नदी के किनारे और उसकी जो उपनदियां है, ट्रिब्यूटरीज है, गंभीरी, विराज एंड वगान. एज वी ऑल नो दैट एंशियंट पीपल used to settle down normally around the banks of rivers for the obvious reason of availability of water, which is life. वैसे ही राजस्थान में हुआ. बनास और उसके ट्रिब्यूटरीज के अगल बगल में आपको 1 लाख years ago human settlements दिखाई देती है. When we talk about the historical past, it is also full of stone tools. तो हम लोग राजस्थान में stone age tools भी देखते हैं. And the earliest evidence of them being gathered from Rajasthan happens to be 5,000 to 2 lakh years ago. Basically वो 2 लाख 5 लाख से 5 लाख होना चाहिए था. वो बेसिकली 5 लाख से 2 लाख ईयर्स के बीच में हमें वहां पे स्टोन टूल्स भी मिले हैं. तो अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज ह्यूमन सेटलमेंट्स हमें 1 लाख ईयर्स अगो मिलती है. बट बिकॉज human being was a hunter gatherer and wanderer at that point in time, even before that. तो स्टोन एज की अगर हम बात करें तो वो 5 लाख से 2 लाख ईयर्स अगो हमें राजस्थान में मिलते हैं, स्पेशली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बूंदी एंड भिलवाड़ा. बूंदी और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आज भी राजस्थान के काफी कल्चरल और हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी फुल डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं, और वहां से हमें स्टोन एज टूल्स भी गैदर हुए हुए दिखाई दिए हैं. Next point is human settlements in Harappan times on the banks of river Saraswati were found in excavations at Kalibangan in northern Rajasthan dating back to 3000 to 1500 BC. हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, हरप्पन सिविलाइजेशन के दौरान सरस्वती नदी, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है,
इस सरस्वती नदी के किनारों पे, स्पेशली एट द साइट्स ऑफ कालीबंगन, कालीबंगन एक बहुत ही फेमस इंडस वैली साइट है जिसका लिटरल मीनिंग होता है ब्लैक बैंगल्स, इसीलिए उसका नाम कालीबंगन, segmentizing that bangles were being produced at that particular site. एक कालीबंगन एक साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट मानी जाती है, वो सरस्वती नदी के किनारे हमें मिलती है। और जो नॉर्दर्न राजस्थान का, करंट नॉर्दर्न राजस्थान का पार्ट है, जहां पे हमें 3000 से 1500 ईसा पूर्व में राजस्थान में ह्यूमन सेटलमेंट्स दिखाई दी गई हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो हम लोग 5 लाख साल की हिस्ट्री से लेके आगे 1 लाख साल की हिस्ट्री तक आते हैं, वहां से हम 3000 से 1500 ईसा पूर्व की हिस्ट्री तक आते हैं। द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झुंझुनू एंड सीकर along with areas of Jaipur district that border South Haryana are said to have been part of Vedic state of Brahmavarta. अब हम जब एंशियंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे वैदिक स्टेट में आते हैं, द फेज ऑफ द वेदास में जब हम आते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वहां पे भी आपको झुंझुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट जो आज के राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स है, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट का ऐसा पार्ट जो कि बॉर्डरिंग साउथ हरियाणा है, वहां पे आपको वैदिक स्टेट ऑफ ब्रह्मवर्ता में ह्यूमन सेटलमेंट्स दिखाई देगी। आर्यावर्ता, ब्रह्मवर्ता, भारतवर्षा, ऐसे एंशियंट नाम भारत के लिए लिए जाते थे। आर्यावर्ता वो एरिया है जहां पे आर्यंस लिव किया करते थे, ब्रह्मवर्ता वही एरिया है जहां पे ब्राह्मण्स लिव किया करते थे। तो राजस्थान के झुंझुनू, सीकर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको उसके वैदिक रेलिक्स भी मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ व्हाट इज नाउ राजस्थान were part of the Vedic civilization and the Indus Valley civilization. So the current or the modern state of Rajasthan geographically was an entity well spread across the Vedic and the Indus Valley civilization. So it was a kind of a मिली-जुली संस्कृति, जहाँ पे हमें इंडस वैली संस्कृति का भी रेमनेंट्स मिलते हैं और वैदिक कल्चर के भी रेमनेंट्स हमें मिलते हैं. So that is the kind of a glory of Rajasthan, so that it could have a kind of a sense of a glorified past. और इसीलिए हम दुनिया को बोल सकते हैं कि हमारे पास इतनी विविधता से बनी हुई संस्कृति है. That is the beauty of the state of Rajasthan. Let's move on. For ease of understanding, we can divide the history of Rajasthan, as we do with the other historical areas, with ancient, medieval and modern history of Rajasthan. Of course, the ancient period of the history of Rajasthan falls till what happened up till 1200 BC. ठीक है, 1200 ईसा पूर्व तक जो हुआ वो राजस्थान के एंशियंट हिस्ट्री में आता है. देन इफ यू टॉक अबाउट द मिडाइवल हिस्ट्री, मध्ययुगीन राजस्थान के इतिहास की बात की जाए तो 1200 एडी से आपको दिखाई देगा 1707 एडी तक. सो दिस इज समथिंग विच इज टिपिकली द मुगल राज और द मुगल पीरियड और द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री एज इट इज कॉल्ड. And then the modern period, which coincides with the national modern categorization also, that is 1707 up till 1947, the year of independence of India. So this is roughly the categorization as we can make the history of Rajasthan categorized also. So let's move on. From about AD 700, many Rajputs clans ruled over different parts of Rajasthan. As we all know, the history of Rajasthan has been largely categorized as the history of the glorious Rajput clans. राजपूतों का इतिहास राजस्थान का इतिहास कहलाता है और राजस्थान का इतिहास राजपूतों के इतिहास से भरा पूरा कहलाता है. और राजपूतों की वैलर, राजपूतों की शूरवीरता, राजपूतों का कल्चर और राजपूतों की जुबान हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आज भी मानी जाती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई अक्रॉस अराउंड 700 एडी आपको राजस्थान में कई सारे राजपूत क्लैंस का रूल दिखाई देगा और वो अलग अलग एरियाज में था राजस्थान के. अपार्ट फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर, देयर इज एविडेंस ऑफ रूल बाय द मलावाज और द मालवाज, द अर्जुनियाज, द योध्याज, द कुशानाज, द शक सत्रप्स, द गुप्ताज एंड द हूनाज. मतलब राजस्थान की इस पावन धरती पे कौन से क्लैंस ने या एम्पायर्स ने ह्यूमन सेटलमेंट्स देखी या राज करते हुए हमने उनको देखा,
तो कुछ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर भी राजस्थान का पार्ट रहा है या फिर राजस्थान मौर्यन एम्पायर का पार्ट रहा है। देन हमने मालवाज, अर्जुनियाज, योध्याज, कुशानाज, शक क्षत्रप्स, गुप्ताज एंड हुनाज, इन राजाशाही को भी यहाँ पे चलते हुए देखा है। These are the dynasties or these are the clans who ruled over the soil of Rajasthan. From around 8th to the 12th centuries, Rajasthan saw the rule of the Pratiharas, the Chalukyas, the Parmars and the Chauhans. हम लोग राजस्थान में प्रतिहाराज का रूल भी देखते हैं 8वीं से 12वीं सदी के बीच में। गुर्जरा प्रतिहारा आपने सुना होगा, आज भी गुर्जर समुदाय बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान का पॉपुलेशन का मेन स्ट्रीम समुदाय है, ग्लोरीफाइड उनका भी पास्ट रहता है। गुर्जरा प्रतिहाराज, चालुक्याज ऑफ बादामी, देन परमार्स एंड चौहान्स, इनका भी एक राजस्थान में ग्लोरीफाइड इतिहास जरूर रहा है और इसलिए आज भी वहां पे परमार और चौहान्स बड़े ही सेलिब्रेटेड सरनेम्स हुआ करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एट द बिगिनिंग ऑफ द 13th century, Mewar, now come to the medieval history. As we have dealt with the ancient Indian Rajasthani history, now let's deal with a bit medieval Rajasthan history. At the beginning of the 13th century, Mewar was the most powerful and prominent state of Rajasthan. हमें पता है मेवाड़ का जो स्टेट था वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट पावरफुल स्टेट था। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में मेवाड़ स्टेट हैज risen to what is called as its zenith of power. बहुत ही फेमस ये स्टेट रहा है और इसीलिए मेवाड़ के खिलाफ कई सारे फॉरेन अग्रेसर्स ने भी मोर्चा खोला है इवन मेडाइवल पीरियड के दौरान, हमें पता है। आफ्टर पृथ्वीराज चौहान्स डिफीट इन द बैटल ऑफ तराइन in 1192, the Islamic dominance was seen in India, including in Rajasthan. हमें पता है कि भारत के जो चुनिंदा ग्रेट राजाओं, टेरिटोरियल राजाओं में जिनके नाम शुमार है उसमें एक सबसे अग्रणी नाम द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान जी का आता है, जो कि राजस्थान की इस भूमि पे काफी शूरवीर राजाओं के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। हमें पता है कि उन्होंने कई सारी बैटल्स लड़ी, जीती, उन्होंने कई लोगों को हराया भी, बट 1192 की तराइन की बैटल में उनका जब डिफीट हुआ तब से लेके फिर आगे हम लोग इस्लामिक फेज की शुरुआत देखते हैं डोमिनेंस की राजस्थान में, जैसे वो अदरवाइज इंडिया में भी हुआ। एज वी ऑल नो दैट द मुगल राज स्टार्टेड इन इंडिया सिंस अराउंड 1200 AD ऑनवर्ड्स। उससे पहले प्री मुगल्स का एरा पड़ता है लगभग 750 से 1200 के आसपास प्री मुगल्स का एरिया पड़ता है और उसके बाद एक मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई जो कि इस पीरियड से कोइंसाइड करता है 1200 1192। तो पृथ्वीराज चौहान जी की डिफीट के बाद मुगल साम्राज्य का आरोहण यहाँ पे हुआ है। देन मुस्लिम रूलर्स reigned over parts of Rajasthan around 1200 AD, chiefly from Nagaur and Ajmer. Ranthambore was also dominated by them. राजस्थान में मुगल शासकों का जो रूल रहा है वो सबसे ज्यादा नागौर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट्स में रहा है, स्पेशली इवन रणथंबोर में भी उन्होंने काफी डोमिनेंस दिखाया है। वो ईस्वी सन 1200 के आसपास रहा है ईसा। प्रोमिनेंट रूलर्स ड्यूरिंग दिस एरा included the Shisodiya rulers, the rulers of Mewar, the Principality of Dungarpur, Banswada, Marwad, Jaisalmer, Amber and Bundi, to name the few. यहाँ के जो प्रोमिनेंट रूलर्स माने जाते थे वो शिसोदियास थे। शिसोदिया आज भी राजस्थान में बड़ा सेलिब्रेटेड सरनेम हुआ करता है। इवन मनीष सिसोदिया साहब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। देन रूलर्स ऑफ मेवाड़ का भी नाम लिया जाता है। डूंगरपुर नाम का संस्थान भी काफी सेलिब्रेटेड संस्थान हुआ करता था। मुझे याद है कि काफी सालों पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के एक चेयरपर्सन हुआ करते थे मिस्टर राज सिंह डूंगरपुर, जो कि BCCI चेयरपर्सन के नाम पे जिनकी जो कार्यकाल है बहुत ही फेमस रहा। वो इस डूंगरपुर रियासत से ताल्लुक रखते थे, वहां के वो रियासतदार रहे हैं उनके पुरखे। देन बांसवाड़ा, मारवाड़, जैसलमेर, अंबर और बूंदी भी ग्लोरीफाइड इतिहास वाले प्लेसेस रहे हैं। राजस्थान का हिस्ट्री अपने आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। आपके स्क्रीन पे जयपुर पैलेस
राजस्थान का 1890 वाला दिखाई दे रहा है। आज भी कई सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग राजस्थान के इन पैलेसों में होती है। लेट्स मूव ऑन। नाउ वील टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। With various princely states dominating Rajasthan, it was not until Akbar's reign that a unified province of Rajasthan was created. As we have already seen, that many princely states were ruling in different geographical areas of Rajasthan. Geographical and political consolidation of Rajasthan before the reign of Akbar was a little bit incomplete saga. And that is why क्या हुआ कि अकबर की रेन तक राजस्थान बिखरा पड़ा हुआ रहा, लेकिन अकबर के बाद क्या हुआ कि राजस्थान का एक यूनिफाइड प्रोविंस क्रिएट हुआ। और उसका एक रीजन भी है क्योंकि मुगलों ने राजस्थान के ऊपर अपना शासन प्रस्थापित कर दिया, और क्योंकि मुगल एक पैन इंडियन एम्पायर का सपना लेके यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक पैन इंडियन एम्पायर एस्टैब्लिश भी किया और काफी लंबे समय तक वो भारत के शासक बने भी रहे, तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के ऊपर दे हैव कंसंट्रेटेड देयर एनर्जीज अपॉन, एंड दैट इज व्हाट हैज रिजल्टेड इनटू द political consolidation and geographical unification of the province of Rajasthan, what is currently a modern state of Rajasthan in India. So after 1707, the Mughal power declined, resulting in political disintegration in Rajasthan. As we all know that 1707 was the most important milestone year in the history of medieval India because it signified the death of Aurangzeb, the last formidable ruler of the Mughal Raj. And after Aurangzeb's death, immediately though the medieval or the Mughal Raj didn't decline, but slowly but surely due to weak successors and their timid policies, the Mughal Raj came to a decline, slowly but surely. And that is why after 1707 it declined, and it resulted into political disintegration in Rajasthan, as it resulted into the same way in other parts of the country. क्योंकि मुगलों ने जो एक साम्राज्य देश में तैयार किया था वो एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड वेल कंसोलिडेटेड साम्राज्य था, और जैसे ही सेंटर पावर वीक हो गई तो टेरिटोरियल पावर्स ने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया. सो द टेरिटोरियल पावर्स हैव स्टार्टेड इन फ्यूडिंग फॉर पावर अमंग्स देमसेल्व्स as well as with the successors of the Mughals, and that is why it brought about a disintegration, political disintegration all over the country. So it happened with the state of Rajasthan also. Then what happened? The Marathas gained power after the Mughals and occupied Ajmer in 1755. We know that the history of India is witness to the history of the great Marathas also. In fact, the Marathas were the only political or the territorial power in the country, indigenous territorial power in the country, who dreamt of carving out a national government or a national principality named as Swaraj by the founder of the Maratha kingdom, the late Chhatrapati Shivaji Maharaj. तो शिवाजी महाराज ने जो स्वराज का, हिंदवी स्वराज का सपना देखा था, उसी सपने को लेके आगे उनके बेटे संभाजी महाराज और फिर पेशवाज पैन इंडियन एम्पायर बनाने के पीछे लगे रहे, और इसी के चलते मराठास ने अपने नॉर्थवर्ड्स एक्सपेंशन किए, कई सारे एक्सपीडिशंस किए. तो बाय 1755 उन्होंने अजमेर को भी ऑक्यूपाई कर लिया, और ऑलमोस्ट एक समय तो उन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट भी ऑक्यूपाई कर लिया था. हैड दे नॉट बीन डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली in 1761 in the third battle of Panipat, decisively they got defeated, it would have been a different story. Had the Marathas not suffered this defeat, they could have been successful in carving out and maintaining a pan-Indian indigenous empire, not manned by the aggressors. And that is why the history of India then afterwards could have been something different. But because they were decisively defeated and they were also weakened afterwards, but before that, because it happened in 1761, before that they seized Ajmer as a part of their northwards expedition. Then the Pindaris attacked and established their power.
in the beginning of the 19th century. Now we know that the Pindaris were tribal community people and they were known for their plundering zeal. They were nevertheless brutal, brutal plunderers and they were marauders like that. और इसलिए उन्होंने भी कई सारे हमले राजस्थान की रियासतों पे किए 19वीं सदी की शुरुआत में. So that is what is the start of the modern history of Rajasthan. Now the age of the Rajputs. राजस्थान का इतिहास का कोई भी चर्चा बिना राजपूतों के इतिहास के हो ही नहीं सकता. And that is why the age of the Rajputs is a very glorified page in the history of Rajasthan. Since ancient times, sorry, the Rajputs were known for their bravery as well as their supremacy in war skills and planning. राजपूतों का इतिहास पहले से ही गवाह रहा है कि वो बहुत ही शूरवीर हुआ करते थे. उनकी जो मिलिट्री स्किल्स है या फिर जो उनका युद्ध कौशल है वो और उनका जो नियोजन का कौशल है वो उसका लोहा उस समय के लोग भी मानते थे और उसके बाद के लोग भी आज तक मानते हैं. एंड दैट इज व्हाई पॉलिटिकल स्पीयर में हो चाहे इकोनॉमिक स्पीयर में हो राजस्थानियों ने देश के विकास में काफी हेल्दी कंट्रीब्यूशन किया है, करते रहेंगे. देन मेनी रूलर्स फ्रॉम राजस्थान are still revered for their contribution to building a legacy that what is Rajasthan today. आज राजस्थान जैसे दुनिया के सामने और भारत के सामने पेश होता है, जिस कॉन्फिडेंस से राजस्थान हमारे सामने पेश होता है उसमें कई सारे बड़े नामों की चर्चा होती है और उनका कंट्रीब्यूशन याद किया जाता है क्योंकि उनका लेगेसी ही आज का राजस्थान कहलाता है. दिस इज व्हाट द सेकंड पॉइंट मीन्स. एंड इट इज नॉट जस्ट द बैटल स्टोरीज that speak highly of the Rajputs, but also the architecture, the culture, the literature that were developed and propounded. इसका मतलब है कि Rajputs were not just known for their warring skills or their battle skills. They were also equally known and revered for their liking for architecture, their contributions to architecture, culture and literature. So likewise, many other rulers of the contemporary era of that time, the Rajputs were also culturally, politically, religiously sensitive people, sensible people, and they knew how much patronage to be given, how badly the Kalakars need patronage, how badly literature must be patronized. And that is why they were also great for that, their contributions in these respective fields. इसीलिए आज भी आप जाके देखो कि दुनिया से सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं राजस्थान का आर्किटेक्चर देखने के लिए. राजस्थान के आर्किटेक्चर में राजपूतों का एक अनन्य साधारण महत्व है. उन्होंने जितना उस आर्किटेक्चर को एनरिच किया है और जितना वो स्ट्रांग है तब ताकि आज भी वो टिका है, आज भी उसको हम लोग संजो के रखे हैं भारत का हेरिटेज के तौर पे, वो गवाह है कि उनका आर्किटेक्चर का विजन कितना स्ट्रांग था, उनकी सेंस ऑफ ब्यूटी ऑफ विजन कितनी स्ट्रांग थी और वो एक कल्चरल और लिटरेचर वाले पैटर्न्स भी माने जाते थे. जस्ट आगे बोलते. नाउ राइट फ्रॉम द स्टोन एज टू द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनी क्लैंस इमर्ज्ड एंड रूल्ड ओवर व्हाट इज प्रेजेंट डे राजस्थान. एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड बिफोर दैट इस दौरान जब से स्टोन एज में राजस्थान की धरती पे इंसानी अस्तित्व का हमें प्रमाण मिलता है, तब से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन तक भी कई सारी क्लैंस राजस्थान में इमर्ज हुई. द हिस्टोरिकल पीरियड बिगैन अराउंड 500 BC ड्यूरिंग द महाजनपदा पीरियड फॉलोड बाय द मौर्य रूल. हमें पता है कि महाजनपदास पहले जनपद बने फिर महाजनपद बने, जस्ट लाइक हम उनको महानगर कह दे आज के. तो फिर उसके बाद एक रेन अशर हुई द रूल ऑफ द मौर्याज. मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही गौरवान्वित साम्राज्य भारत के इतिहास में जाना जाता है और मैंने आपसे कहा कि राजस्थान की भूमि पे भी उनका रूल रहा है. उसके बाद इंडो ग्रीक रूल आया, उसके बाद गुप्ता रूलर्स ने भी राजस्थान की भूमि पे राज किया एंड देन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हूना एंड द वर्धना किंगडम्स. हूनों ने, शक क्षत्रप्स ने और वर्धना किंगडम्स ने भी राजस्थान की भूमि पे रूल किया. नाउ इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द एंशिएंट राजस्थान इंक्लूड, जैसे मैंने पहले ही नाम ले चुका हूं, गुर्जरा प्रतिहारा, प्रतिहाराज ऑफ मंदौर, इनके नाम लिए जाते हैं. तो जो मंदौर के गुर्जर्स है वो आज भी फेमस है राजस्थान में. आपको पता होगा कुछ साल पहले
गुर्जरों का बहुत बड़ा आंदोलन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के अध्यक्षता में आरक्षण के लिए हुआ राजस्थान में। और आज भी मेरे ख्याल उस आंदोलन की जो मशाल है, वो जो लॉ है वो अभी बुझी नहीं है, इट इज स्टिल ऑन। और इसीलिए ये जो गुर्जरा प्रतिहारा है या प्रतिहाराज ऑफ मंदौर है, ये एक गौरवान्वित क्लैन मानी जाती है राजस्थान की। देन द प्रतिहाराज ऑफ भीमल, भीमल के जो प्रतिहारा है वो भी एक ब्रांच हुआ करती थी, जैसे मराठाओं की कई सारी ब्रांचेस पूरे देश में फैली थी, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, होलकर्स ऑफ इंदौर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे ही ये प्रतिहाराज की जो ब्रांचेस है वो पूरे राजस्थान की भूमि पे इर्द गिर्द फैली हुई थी। देन द गोहिल्स ऑफ मेवाड़, आपको पता है कि मेवाड़ रीजन में आज भी गोहिलों का साम्राज्य ही माना जाता है। कई सारे लोग गोहिल कम्युनिटी से या गोहिल सरनेम से केंद्र में मंत्री भी बने हैं। द रिसेंट नेम which is I'm reminded of is Mr. Shakti Singh Gohil, who happened to be the union minister. फिर चौहान ऑफ शाकंबरी एंड रणथंबोर, शाकंबरी और रणथंबोर के चौहान क्लैन भी बड़ी फेमस क्लैन रही है, आज भी पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लैन मानी जाती है राजस्थान के पॉलिटिकल इक्वेशन में। आज भी उनका बोलबाला है, दबदबा है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द एज ऑफ राजपूट्स। आगे चलते हैं। नाउ द रूलर्स ऑफ राजस्थान इन द मिडाइवल पीरियड। अब मिडाइवल पीरियड में राजस्थान में कौन से रूलर्स किस किस एरिया में रहे हैं। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो एज स्टेटेड अर्लियर, द सिसोदिया डायनास्टी ऑफ मेवाड़ एंड प्रतापगढ़ was very much famous. Also the rulers of Dungarpur, as I've just mentioned about Raj Singh Dungarpur, and the rulers of बांसवाड़ा, ये फेमस रूलर्स हुआ करते थे मेवाड़ से। सिसोदिया उनमें सबसे अग्रणी नाम माना जाता है। अगर हम आगे आए मारवाड़ की तरफ, तो रूलर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर, ये डिस्ट्रिक्ट्स आज भी राजस्थान में मारवाड़ी रूलर्स की इतिहास के गवाह हैं। उनके इतिहास की कई सारी झलकें आज भी राजस्थान की इन डिस्ट्रिक्ट्स के कल्चर में झलकती है। सो रूलर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स लाइक दीज वर ग्रेट रूलर्स ऑफ राजस्थान। देन फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रिंसिपलिटी ऑफ आमेर, आमेर में आपको कछवाहा डिनास्टी बहुत फेमस दिखेगी। कछवाहा, जिसको कई बार कभी कभी कुशवाहा भी वो हो जाते हैं कई पार्ट्स में देश के, कुछ लोग उत्तर प्रदेश में जाके कुशवाहा ब्रांच बन गए। तो ये जो कछवा डिनास्टी है, राजस्थान में इनका नाम आज भी कछवा ही है, ये भी एक डोमिनेंट पॉलिटिकल डिनास्टी आमेर प्रिंसिपलिटी की रही है। आज भी राजस्थान के पॉलिटिकल इक्वेशन में कछवाज कुछ एरियाज में डोमिनेंट माने जाते हैं। अगर आप आए हदोती की तरफ, तो आपको वहां पे रूलर्स ऑफ बूंदी एंड कोटा मिलेंगे। कोटा राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट ग्रोइंग सिटी है आज भी, स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE। लोग पूरे भारत से कोटा में आते हैं, हमें पता है। मेडिकल नीट प्रिपरेशन के लिए भी कोटा पैटर्न फेमस हो चुका है। ये जो हदोती के रूलर्स थे बूंदी और कोटा के, ये भी फेमस थे राजस्थान में। देन फ्रॉम सिरोही, द रूलर्स ऑफ सिरोही, सिरोही भी एक इम्पॉर्टेंट संस्थान एरिया रहा है, जहाँ पे सिरोही के रूलर्स भी राजस्थान में डोमिनेंट हुआ करते थे। आज भी उनमें से कुछ लोग सिरोही रूलर्स कुछ प्रिंसिपलिटीज के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डोमिनेंट माने जाते हैं। लेट्स मूव ऑन। नाउ द मेजर राजपूत रूलर्स इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ राजस्थान इंक्लूड फर्स्ट द जाट रूलर्स ऑफ भरतपुर। भरतपुर के जाटों की कहानियां काफी पुरानी है और काफी सजी धजी कहानियां आज भी हम सुनते हैं। नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल इक्वेशन में एंड वेस्टर्न इंडिया के पॉलिटिकल इक्वेशन में जाटों का एक अपना अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, और उनकी एक बड़ी टॉल हस्ती रही है और है भी। एक डोमिनेंट कास्ट है वहां की, एक डोमिनेंट कल्चर है उनका। तो भरतपुर एरिया में इनका प्रोमिनेंस आज भी आपको दिखाई दिया। राजस्थान की पॉलिटिकल कल्चर में आज भी जाटों का रूल इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन कछवा रूलर्स ऑफ अलवर, एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड देम। कछवा रूलर्स अलवर में भी थे। कछवा रूलर्स ऑफ जयपुर, फिर उनकी ब्रांचेस हुई अलग अलग। जयपुर में भी कछवा रूलर्स आपको दिखेंगे। फिर सीकर जिले में आपको शेखावत दिखेंगे। आपको पता है कि वन ऑफ द अर्लियर वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, मिस्टर भैरव सिंह शेखावत, वॉज फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट। वो सीकर के ही उनके पुरखे हुआ करते थे। शेखावती जिसको बोलते हैं राजस्थान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो इन्हीं के नाम पे आती है कि भाई ज्यादा शेखावती मत बता तो मुझे। तो ये शेखावत का ग्लोरीफाइड इतिहास रहा है, इसलिए है।
In fact, you know that one of the most important personality of all times in India and the first woman president of India, Mrs. Pratibha Devi Singh Shekhawat. बेसिकली वो शेखावत क्लैन से ही बिलोंग करते हैं, उनके जो पति है, एंड दैट्स व्हाई आफ्टर मैरिज हर नेम वाज मिसेस प्रतिभा देवी सिंह शेखावत. बेसिकली शी वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बट बिकॉज she got married to Mr. Devi Singh Shekhawat who belonged to Sikar Shekhawati clan. तो वो भी एक शेखावतों की रूल के बारे में बताते हैं. देन द झाला रूलर्स ऑफ झालावाड़. झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट आज एक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट माना जाता है राजस्थान का, और वहां के झाला रूलर्स का भी काफी नाम सराबोर के साथ लिया जाता है राजस्थान के इतिहास में. तो दीज आर दी मेजर डायनास्टीज ऑफ द एज ऑफ राजपूत्स. आगे चलते हैं. नाउ द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स. राजपूतों का ओरिजिन क्या रहा है? इट वॉज अराउंड 6th century AD दैट द टर्म राजपूत केम इनटू यूज. राजपूत ये जो टर्म उपयोग में आई, ये सबसे पहले 6ठी सदी के आसपास की बात है. मेनी थियरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स वर अबाउट. कई सारी थियरीज दी जाती है. फर्स्ट इज द फॉरेन ओरिजिन थियरी. इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर V.A. Smith, Colonel James Todd, William Crookes. States that Rajputs were descendants of the foreign clans such as the Shakas, the Kushanas and the Hunas. कुछ लोग मानते हैं कि भाई राजपूतों का जो ओरिजिन है वो कल्चरल ओवरलैप की वजह से फॉरेन क्लैंस के साथ हुआ है, और इसीलिए राजपूत जो थे वो डिसेंडेंट्स थे फॉरेन क्लैंस के. भारत में कई सारी फॉरेन क्लैंस आके गई, जिसमें हमें पता है कि शक शत्रप्स हुए, शक एरा वाले शकाज. देन कुशानास, जो हमें पता है कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से आए थे. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुशानास वर बेसिकली फ्रॉम चाइना. इन चाइना देयर वाज अ डायनास्टी नेम्ड एज क्यूशेंग. इट केम टू इंडिया एंड दे बिकम कुशान्स हियर इन द लोकल लिंगो, ऐसे भी कहा जाता है. उसके बाद हुनास का भी रेन, क्योंकि हमने देखा है राजस्थान में रहा है. तो कुछ लोगों का ये मानना है कि एक फॉरेन ओरिजिन है राजपूतों का. हालांकि इंडिया के ग्लोरीफाइड इतिहास में हम लोगों को ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि हम लोग फॉरेन ओरिजिन के रहे हैं, बट दैट वाज अ थ्योरी बेसिकली प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर V.A. Smith एंड कर्नल जेम्स टॉड. कुछ लोगों की ये भी थ्योरी है कि एक मिक्स्ड ओरिजिन है. डॉक्टर C.P. चटर्जी उसके प्रोपोनेंट है. ही टॉक्स अबाउट Rajputs being a mixed race originating from the Aryans, the Shakas and the Hunas. Now हमें पता है कि during the reign of the Vedas, especially the Vedic period, is known for the Aryan invasion in India. And from where did the Aryans came to India? And where do they got settled down in India? It is the same soil of Rajasthan. They came right from, if you subscribe to the foreign origin theory of the advent of the Aryans, they came right from the Middle East or the Siberian area, whatever it may be. साइबेरिया से आने की बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी. मिडिल ईस्ट की बात कई और लोगों ने, इतिहासकारों ने कही है. तो आर्यंस का जब मेन यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, द प्री आर्यंस थे, उनके साथ जब मिलन हुआ, उनके साथ जब कल्चरल यूनिजन हुआ, तो एक मिक्स्ड रेस पैदा हुई जो आर्यंस से, शकास से और हुनास से हुई, जिनका नाम राजपूत है. ऐसे मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी वाले मानते हैं. Especially Dr. C.P. Chatterjee is of that opinion. Another theory is the Kshatriya origin theory by Gauri Shankar Oja. Gauri Shankar Oja states that the Rajputs are not of foreign origin, but are the descendants of mythological Kshatriya heroes and are worshipped fire, and they have worshipped the fire. भाई एक थ्योरी ये कहती है कि ये किसी के डिसेंडेंट्स नहीं थे, ये एक माइथोलॉजिकल क्षत्रिय हीरोज के डिसेंडेंट्स थे. आपको पता है, जैसे एक थ्योरी फेमस है कि भाई फायर वर्शिपर्स का जो सबसे बड़ा भगवान हुआ करता था, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, उसके बाहु से प्रतिहारास परमार्स निकले, थाइस से पवार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी जो भी बातें बोली जाती है, समथिंग लाइक दिस, की ये थ्योरी उस पर बेस्ड है. माइथोलॉजिकल क्षत्रिय हीरोज की बात की गई है.
अब इसका कितना प्रमाण हम माने, दैट इज अप टू द हिस्टोरियंस टू डिसाइड. इट्स नॉट मच फॉर आर इंटरेस्ट दैट वी शुड गो इनटू द ग्रेटर डिटेल ऑफ दैट. नाइदर इट इज द मैंडेट ऑफ आर एग्जाम. सो हम सिर्फ इतना मान ले कि ये एक तीसरी थ्योरी दी गई है राजस्थानी राजपूतों के ओरिजिन के बारे में. एक और थ्योरी दी जाती है जिसको अंगीकुला थ्योरी बोलते हैं या अंगीकुल थ्योरी बोलते हैं. इट वाज पुट फोर्थ बाय पृथ्वीराज रासो ऑफ चांदबरदाई या चांदरबरदाई एंड सपोर्टेड बाय मुनहोत नैसी एंड सूर्यमल मिश्रा. एक अंगीकुल की थ्योरी पृथ्वीराज रासो जो चांदबरदाई ने रची थी रचना, उसमें दी गई है और जिसको सपोर्ट किया है मनोहत नैसी ने और सूर्यमल मिश्रा ने, जिसमें डिपिक्ट किया गया था ओरिजिन ऑफ राजपूत एज अ रिजल्ट ऑफ द यज्ञ परफॉर्म बाय ऋषि वशिष्ठ. पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा गया है कि ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ से उत्पन्न हुई जो क्लैन है वो राजपूत है. द 4 राजपूत क्लैन्स दैट इमर्ज्ड फ्रॉम द डिवाइन फायर are said to be the Chauhans, the Chalukyas, the Parmars and the Pratiharas. ये जो मैंने अभी आपको बताया कि उस यज्ञ से आदि पुरुष के शरीरों के अंग से आपको चौहान्स, चालुक्यास, परमार्स एंड प्रतिहार्स आते हुए दिखेंगे. अब वैसे देखा जाए तो साइंटिफिक लॉजिक से इस थ्योरी को मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी यज्ञ से कोई आदि पुरुष होगा और उससे कोई 4 क्लैंस निकली होगी और उनको हमने बाद में राजपूतों के नाम से फेमस होते हुए देखा होगा. इसका आज का मानने का साइंटिफिक एज में कोई तर्क नहीं बनता. बट डिस्पाइट ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द ग्रेट वैलरस क्वालिटीज ऑफ द राजपूत्स, उनकी डिसेंडेंट्स को आपने हीरोज के साथ जोड़ दिया जाए तो दैट इज अ क्लासिक नमूना ऑफ द देन सोशल साइकोलॉजी ऑफ पीपल इन विच दे बिलीव्ड that their ancestors have born from mythical creatures. And this is not just in Rajasthan that it happened. Elsewhere in the country also, many people are of the opinion that their ancestors were byproducts of mythical rituals and mythical heroes from where they have descended. तो ये कोई सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ है, पूरे भारत में अलग अलग एरियाज में जरूर हुआ है that people with magical capabilities were being presumed as rulers, or rulers were presumed as people with magical capabilities. तो ये सारी चीजें हम लोग ओरिजिन ऑफ राजपूत के साथ जुड़ी हुई देखते हैं. लेट्स मूव ऑन. नाउ दिस इज द मैप ऑफ राजस्थान, अर्ली पॉलिटिकल मैप ऑफ मिडाइवल इंडिया, जिसमें आपको राजस्थान की साइड वाला मैप दिखेगा. दिस इज द एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा. गुर्जरा प्रतिहाराज का एरिया है, आपको वहां पे भट्टीज दिखाई देंगे, गोहिल्लास का एरिया दिखेगा चित्तौड़ के पास, परमार्स दिखेंगे, चालुक्यास दिखेंगे, वल्लभी धारा के पास आपको दिखेंगे वो. देन आप दिल्ली के पास तोमरों का इलाका देखोगे. तोमर्स आज भी इंडिया के पॉलिटिकल मैप में राजस्थान से एक डोमिनेंट ये माने जाते हैं, क्लैन मानी जाती है. आपको पता है एक तोमर साहब हमारे केंद्र में मंत्री भी थे. तो अगर आप ये देखो तो राजस्थान का ये इतना बड़ा मैप रहा है इंडिया के मैप में. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. नाउ अर्ली राजपूत पॉलिटिकल सिस्टम, पहले राजपूत की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हुआ करती थी, लेट्स नो अबाउट दैट. 647 से 1192 सीई या एडी कह लो इसको आप, इज रेफर्ड टू राजपूत एज इन द हिस्ट्री. राजपूतों का जो कार्यकाल माना जाता है वो बेसिकली 647 से 1192 एडी का कार्यकाल माना जाता है. आफ्टर द डेथ ऑफ राजा हर्षवर्धन, क्योंकि हमें पता है वर्धना डिनास्टी भी वहां पे राजस्थान में रही है, तो राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद टू द बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, इन विच पृथ्वीराज चौहान गॉट डिफीटेड. मेनी राजपूत किंगडम्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इन नॉर्दर्न इंडिया. ये जो पीरियड रहा है, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु और तराई का युद्ध जिसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया है, कई सारे राजपूत किंगडम्स का एस्टैब्लिशमेंट हमने देखा नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली इन राजस्थान में. विद द क्लैंस प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम, द हायरार्की had the raja at the top and the ruling elite known as the samanta और सुमंता, कई जगह इसका नाम सुमंत भी आता है या सामंत भी आता है या समंत भी आता है. आज हम जिसको
सामंतवादी विचारधारा या सामंतवादी सोच या सामंतों की सोच या सामंतों की शक्ति जो बोलते हैं, वो इसी सामंत वर्ड से आया है, विच इज नथिंग बट द फ्यूडल क्लैन स्ट्रक्चर। तो ये जो हायरार्की हुआ करती थी राजपूतों की, उसमें सबसे ऊपर राजा रहा करता था, और फिर राजा के दरबारी जिनको हम एलिट क्लास कहेंगे या सामंत क्लास कहेंगे, एंड देन द हेड्स ऑफ द सब क्लैंस, और फिर जो उपशाखाएं थी इन क्लैंस की, उसके मुखिया। मतलब एक राजा से लेके एलिट एंड सब एलिट क्लास का ये हायरार्चिकल स्ट्रक्चर राजपूतों का रहा है। ईच क्लैन had ruled his territory independently. हर क्लैन का जो मुखिया रहता था वो अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंटली रूल करता था। इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस भी उनके हाथ में थे, और वो कभी भी एट विल टैक्सेस का इम्पोजिशन करते थे। एंड हैड ऑल जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उनके पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी थी। As we all know that the then type of state in India was not a kind of a model state as is prevalent now. It was neither a democratic state nor a welfare state nor a state with a separation of judiciary, legislature and executive. And that is why all the powers were concentrated in the hands of the sovereign. So they had economic powers, they had judicial powers, they had administrative powers. It was basically the rule of the sovereign, the rule of the king, which was dominant. So it was a monarchical setup. So it was quite obvious that we will have witnessed this kind of a setup there. The Raja would not wield any power or control over the chiefs of the ruling clans. राजा जो था, वो जो एलिट क्लास के रूलिंग क्लास के जो चीफ्स हुआ करते थे, या फिर जिनको हमने सामंत कहा, उनके साथ मिल के रूल करता था। उनके ऊपर वो रूल करता था ऐसा वो इंप्रेशन नहीं देता था उनको, क्योंकि नॉर्मली ये भी सब लोग रॉयल फैमिलीज से हुआ करते थे। रॉयल ब्लड का थ्योरी यहाँ पे इंडिया में पहले से डोमिनेंट रहा है, और इसीलिए राजा उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है, वो ड्यू रिस्पेक्ट जरूर दिया करता था। दैट इज द रीजन व्हाई द राजपूत कॉन्फेडरेसी हेल्ड टुगेदर फॉर सो लॉन्ग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। And that is the reason why the Rajput unity was commendable, and it is still a commendable feature of the political fabric of the state of Rajasthan. तो इसलिए ये आज भी राजपूतों का ग्लोरिफिकेशन माना जाता है। आगे चलते हैं। The prominent Rajput warriors were राणा उदय सिंह। हमें पता है राणा उदय सिंह जी बहुत ही फेमस नाम है राजस्थान का। His son महाराणा प्रताप, उनकी भी काफी चर्चे हैं राजस्थान में। रादर वो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेटस महाराष्ट्र में आपको दिखता है, कुछ वैसे ही महाराणा प्रताप जी का स्टेटस आपको राजस्थान में दिखाई देगा। पृथ्वीराज चौहान जी का स्टेटस आपको राजस्थान में दिखाई देगा। देन बाप्पा रावल, राणा कुंभ एंड पृथ्वीराज चौहान, ये अलग अलग राजस्थान के पीरियड्स में ग्रेट रूलर्स और वॉरियर्स होके गए हैं, जो राजपूत ग्लोरी को डिफाइन करते हैं। ये सारे लोग अपने अपने एरियाज में ग्रेट हुआ करते हैं। बाप्पा रावल फाउंडेड द स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड ही वाज फियर्सली प्राउड ऑफ हिज धर्म। ही डिफीटेड द इन्वेडिंग अरब्स। बाप्पा रावल ने मेवाड़ के संस्थान की नींव रखी, और वो अपने धर्म के बारे में काफी प्राउड फीलिंग रखते थे, और उसी को बचाने के लिए उन्होंने इन्वेडिंग अरब से अपनी प्रिंसिपलिटी को बचाया भी, उनको हराया भी, क्योंकि अरब एक इस्लामिक कल्चर लेके आ रहे थे, वेराज हमारा जो कल्चर था यहाँ का, बाप्पा रावल का जो राजपूती हिंदुस्तानी हिंदू कल्चर था, तो वो उनको बचाने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। राणा संगा और महाराणा संग्राम सिंह रूल्ड बिटवीन 1509 एंड 1527। राणा संग, जिनको महाराणा संग्राम सिंह भी कहते थे, उनका कार्यकाल रहा 1509 से 1527 का। मेवाड़ अचीव्ड पीक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोमिनेंस अंडर हिज रूल, इसलिए आज भी वहां पे इनके नाम से कई सारे मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। मेवाड़ में हर किस्म की प्रगति इनके कार्यकाल के दौरान हमने देखी। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत ही लंबा नहीं रहा है, ऑलमोस्ट 17-18 साल का कार्यकाल है, बट इस 17-18 साल के कार्यकाल में इन्होंने मेवाड़ की जो पहचान है वो शिखर पे पहुंचा दी। Maharana Pratap is considered as one of the greatest warriors and strategists of all times. He successfully fought off Mughal invasions and protected his people.
as I've just said a short while ago, what Chhatrapati Shivaji Maharaj did for the Marathas in Maharashtra, exactly the same and even slightly more is revered till date for his valor. हालांकि इसको कई लोग इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने यह गलती कर दी कि उन्होंने मोहम्मद घौरी को छोड़ दिया, बख्श दिया, और उसी मोहम्मद घौरी ने बाद में उनकी जान दे दी। बट क्योंकि वो ग्रेट राजपूत हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और राजपूतों के इतिहास में अगर कोई उनसे माफी मांग ले तो वो बड़ा दिल करके उनको माफ कर देते हैं, ऐसी उनकी पहचान रही है। और मुगल एम्पायर फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन बिटवीन, राजस्थान में फिर एक बार अलग अलग वॉरलॉर्ड्स इनफ्यूडिंग करते रहे, but later on when the Britishers have ascended themselves at the national level, the Rajputana political system slept under their control. और फिर एक नया ब्रिटिश मुगल राज के एंड होने के बाद एक ब्रिटिश राज का राजपूत पॉलिटिक्स का फेज देश में शुरू हुआ। The Mughal Emperor Akbar unified the various princely clans of Rajasthan into one province, as we have earlier also stated that Akbar brought about political and territorial unification of Rajasthan, consolidation of Rajasthan. The onslaught of the Pindaris and the later attacks by the Marathas resulted in political disintegration. This was also discussed by me a short while ago. कि बाद में पिंडारीज और मराठास की लूट की वजह से भी राजस्थान में आपको पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन दिखाई दिया। When the British rule was established in India, Rajasthan was divided into two major parts. One province of Ajmer and Mewar was directly under the British rule, and the other consisted of 19 princely states ruled by the native Rajputana princes. जब राजस्थान ब्रिटिशों के कंट्रोल में आया तो राजस्थान के वर्चुअली दो प्रोविंसेस हो गए। एक प्रोविंस अजमेर और मेवाड़ का रहा, जिसमें ब्रिटिशों का एब्सोल्यूट कंट्रोल या डायरेक्ट कंट्रोल रहा, और बगल में जो बाकी बचा हुआ एरिया है राजस्थान का एक्सेप्ट अजमेर एंड मेवाड़, उसमें 19 प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग नेटिव रूलर्स के राजपूताना प्रिंसेस के द्वारा रूल किए जाते रहे। इन द 19 princely states were governed by the Rajputana agency reporting directly to the Governor General of India. The Parganas were converted into districts. देखो अभी धीरे धीरे यहाँ से आपको दिखेगा कि मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव ब्रिटिशों ने रखना शुरू किया। अब over these 19 princely states. So instead they decided to keep the control of the princely states with the native rulers, and in lieu of that
The Rajputana agency will report directly to the Governor General of India. That means the Rajputs were now brought under the direct control of the 19 princely states were brought under the direct control of the Governor General of India. And hence they sought shelter from the Governor General and they helped the Governor General to raise their revenues as well. जिनको परगना कहा जाता था उनको अभी जिला जनपद में कन्वर्ट कर लिया गया और एक जनपद के कलेक्टर, जिसको आज भी वहां पे जनपद के कलेक्टर ही बोलते हैं, एक जनपद के कलेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। वो रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे नियुक्त हुआ, आज भले उसके काम अलग अलग होते हैं। फिर उसको मदद करने के लिए नाजिम, तहसीलदार, गिरडवार और पटवारीज को भी कलेक्टर के अंडर में काम करने के लिए दे दिया गया। सो ये जो फ्लक्स हुआ है, इट इज द मिक्सिंग ऑफ द राजपूत पॉलिटिकल सिस्टम विद द ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम which have created this modern administrative thrust of India. ठीक है, आगे चलते हैं। Now, emergence of modern Rajasthan, factors of socio-political awakening of the 19th century. With growing awareness in the 19th century, organized national movement gained impetus. Political education and associations began to spread rapidly. The princely states in Rajasthan, like in other parts of India, offered strict resistance to the organized public forums and agitations. अभी क्या हुआ, because of the capture of India by the Britishers, slowly but surely एक कल्चरल जिसको कहते हैं ओवरलैप होने लगा। अब ब्रिटिशर्स ऐसे देश से आए हैं जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक थॉट, एक नॉन मोनार्कियल सेटअप वाले देश से वो लोग आए थे और उन्होंने हमारे देश में भी कुछ उसी तरह का पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। हमारे लोगों की उनकी जीवनियों के साथ कंपैरिजन होने लगी, हमारे लोग उनकी जीवनियों से क्या कहते हैं उसको प्रभावित होने लगे और उनको वो जीवनियाँ अट्रैक्ट भी करने लगी। फिर कई सारी लोगों में अवेयरनेस भी आई। 19वीं शतक में अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट, हमें पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट शेप अप हुई। फिर बाद में लेटर ऑन हमने देखा कि 20वीं सदी की शुरुआत से गांधी जी ने उसको टेक ओवर किया, बट क्योंकि हम लोग 1857 से ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट को लड़ ही रहे थे तो 19वीं सदी में उसने एक अच्छी टूल पकड़ी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एजुकेशन भी हुआ लोगों का, ब्रिटिश एजुकेशन को, मैकॉले स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, लोग फॉरेन एजुकेशन भी करके आने लगे और फिर कई सारे एसोसिएशंस, अलग अलग हकों को लेके बनने लगे। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स में राजस्थान के एक किस्म की हड़बड़ी मच गई, उनमें एक किस्म का एक असहजता फैल गई। बाकी राज्यों में भी ऐसे ही हुआ है और इसलिए उनसे उसके लिए स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस भी आया, क्योंकि इनके पुरखों के से लेके आज तक इनको एक डायनास्टिक मोनार्कियल रूल की आदत रही। बट अब क्या हुआ कि लोग अपने हकों के लिए लड़ने लगे, लोग अपने हकों के लिए राजा महाराजाओं के सामने झुकने को पूरी तरह से तैयार नहीं है, रेजिस्टेंस लोगों से आया तो वो उनको तौहीन लगने लगी अपनी पोजीशन की और इसीलिए उनको रेजिस्टेंस मिला, स्पेशली अगेंस्ट द forums and agitations. Now many organizations, now this has happened not just in Rajasthan, it has happened everywhere in India, but because we are talking about Rajasthan, it's more to be emphasized. Now many organizations and their leaders came into prominence. Some of them are listed here. इस दौरान कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके लीडर्स फेमस हुए। 1883 में आपको दिखेगा जो सब सभा बनी सिरोही में, वो काफी फेमस रही। उसमें कई सारे लोग मोबिलाइज किए गए। फिर 1919 में राजपुताना मध्य भारत सभा ये दिल्ली में फाउंड की गई। जो राजपुताना के लोग हैं उन्होंने मिलके अपने हकों के लिए ये सभा बनाई एंड 1919 is the era when Gandhiji's mass nationalism movement have been already triggered in India. हमें पता है कि 1915 के बाद गांधी जी एकदम से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव भारत में आके हो गए थे और इसीलिए उसका इम्पैक्ट राजपूतों के इतिहास पे भी पड़ा है। देन 1920 में हमें मारवाड़ में सेवा संघ की स्थापना मिलती है। सेवा संघ का काम बहुत ही सराहा जाता है वहाँ पे, आज भी उसके कई सारे ऐतिहासिक हमारे पास दाखिले हैं।
देन 1937 में आपको भरतपुर कांग्रेस मंडल दिखाई देगा। इसका मतलब क्या कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी का एक ब्रांच आपको भरतपुर में मिलेगा, और इसीलिए आज भी राजस्थान के ऊपर कांग्रेस का राज है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अदल बदल के वहाँ पे राजनीति में डोमिनेंट रहते हैं, बट फिर भी वहाँ की जो सोशल फैब्रिक है, वहाँ के रूट्स तक कांग्रेस की जितनी पहुंच है उतनी अब तक किसी और की नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, भरतपुर कांग्रेस मंडल। देन इन 1942 द आजाद मोर्चा ऑफ जयपुर बिकेम फेमस। तो जैसे हमने देखा कि मॉडर्न पीरियड में हमारा इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल आगे बढ़ते गया, वैसे ही एक मॉडर्न राजस्थान का इमरजेंस भी होते गया। सो राजस्थान अपने पुराने रूट्स के साथ रह के ग्लोरी को संभाल के एक मॉडर्निज्म में कहते हैं ना, एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ मॉडर्निज्म, दैट हैपेंड विद द राजस्थानीज। So the factors of socio-political awareness of the 19th century were like these. Let's move on. So this is the end of the session today. दोस्तों, आज हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में पूरी तरह से, स्पेशली राजपूतों के इतिहास के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने जानने की कोशिश की। आई होप all of you could have liked this session. I keep myself open for suggestions of the students as and when they come. They are always welcome because they can only enrich me. You can give the suggestions to ma'am, to the founders of the academy. They will reach me, and I hope it's a good session. I enjoyed with you. I hope you did the same with me. Thank you very much. We'll end the session here today, and I put myself to rest by giving you a best luck for the future to come, and hoping to rejoin again you in subsequent sessions. Thank you very much.